Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel, The World of Plant by Miss Sabeen Zahoor. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. In our today's lecture, we have to discuss the chapter number 7, cell cycle. Cell cycle is the part of the continuity of life, second year biology, and our today's topic is the cell cycle. So there are some important questions which we have to raise in the starting of the lecture, and these important questions are: what is cell? What do you mean by the cell cycle? How many phases of the cell cycle? What is the resting phase of the cell cycle? In which phase DNA replication take place? Do you understand the cell division? How many types of cell division? So these are very important questions. In the ending of the lecture, we find out the answer of these important questions. So we have to start our today's lecture. First of all, we have to discuss that what is cell. So cell is the basic structural and the functional unit of the life. Cells are main building block, or you can say that building material of the एवरी लिविंग क्रिएचर्स. दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी भी क्रिएचर्स बनाए हैं उन सब का लिविंग यूनिट सेल होता है. ठीक है जी. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था. सो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं कि सेल थ्योरी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, शेल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो. इसके 3 पोस्टुलेट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट सेल थ्योरी के 3 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे होंगे, और इन 3 ट्रायंगल्स पर आपको 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम्स भी दिखाई दे रहे होंगे: शेल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो. सो देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट. द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल organisms are composed of the one or the more cells. New cells can arise only by the division of the pre-existing cells. So it's mean that कि सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, और सेल ही बेसिकली तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेल साइकिल. सो अकॉर्डिंग टू द रुडोल्फ विर्चो, all cells arise from the pre-existing cells by the cell division. Every living cell today is said to be descended from a single ancestral cells that lived 3 to 5 billion years ago. In the vast time period, evolution of the cells and the organism was seen, thus continuing the success of the life on the earth. The genetic information has been preserved through the cell division. Right? सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी हम बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और द प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं, सो हमारे माइंड में फ़ौरन से कॉन्सेप्ट आता है कि इनके जो एंसेस्टर सेल्स होंगे वो कैसे होंगे. सो उनकी जो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनको बेसिकली प्रिजर्व्ड रखा गया, ताकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ जेनेटिकल वेरिएशंस के साथ तमाम तर कॉपीज़ एग्जैक्ट हो जाए. तो यही तो वजह है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लिटिल बिट चेंज आता है, बट कैरेक्टर सेम कॉपी हो जाता है. राइट. सो सेल साइकिल की हम अगेन डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन विच वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म द डॉटर सेल्स, and the daughter cells again divide, right? That is called the cell cycle. Or in the simple words we can say that a complete round of the cell growth and the cell division is known as the cell cycle. एक complete round लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसमें एक सेल डिवाइड होकर एक डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और डॉटर सेल अगेन मैच्योर हो जाता है, फिर उसके अंदर सेल डिवीजन होती है. इस तरीके से ये कंप्लीट राउंड होता है. उस कंप्लीट राउंड को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. So the phases of the cell cycle. Cell cycle consists of the 2 phases, interphase or the resting stage, or you can say that a non-divisional stage. यहाँ पे डिवीजन नहीं होती है, लेकिन बाकी तमाम फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं. Cell cycle consists of the 2 phases, interphase or the resting stage.
रेस्टिंग स्टेज वो स्टेज को कहते हैं जिसमें डिवीजन नहीं होती, राइट। रेस्टिंग फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें डिवीजन नहीं होती, लेकिन बाकी तमाम फंक्शंस लाइक जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है, सिंथेसिस है, तो वो यहाँ पर होती है, बट डिवीजन नहीं होती। सेकेंड फेज इज द डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज में अल्टीमेटली एज नेम शोज कि डिवीजन होती है। इंटरफेज के फर्दर सब स्टेजेस हैं, सो इंटरफेज के जो फर्दर स्टेजेस हैं उसको डिस्कस करते हैं। इंटरफेज डिवाइड्स इनटू द 3 सब स्टेजेस, G1 stage which is the growth 1 stage, S stage which is the synthesis stage, G2 stage means growth 2 stage. Here you can see in the picture a complete cell cycle. Here I am using the 4 different alphabets, G1 for the growth 1 phase, S for the synthesis phase, G2 for the growth 2 phase. G1, S and G2 इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? यू कैन सी इन द पिक्चर दैट आई एम शोइंग दिस इंटरफेज विद द ब्लू कलर, ठीक है। और इसके जो 3 स्टेजेस है, G1, S और G2, G1 को मैंने स्काई ब्लू से शो किया है क्योंकि ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होगी? एस फेज में। एस फेज कौन सा होता है? सिंथेसिस फेज, इसको मैंने पिंक कलर से शो किया है। और फिर आप देखेंगे थर्ड पे G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? ग्रोथ 2 फेज कहलाता है। यहाँ पर ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन होती है किसके लिए? माइटोसिस के लिए, क्योंकि G1, S और G2 के बाद फर्दर फेज कौन सा होता है? डिवीजन फेज। सो यहाँ पर चेक पॉइंट होता है कि तमाम तर प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सेल प्रिपेयर्ड है कि उसमें सेल डिवीजन हो जाए। सो इस फेज को मैंने शो किया है लाइट ब्राउन कलर से। सो इन तीनों फेजेस को अगर इंटरनली आप देखेंगे तो मैंने स्काई ब्लू और यू कैन से मैंने ब्लू कलर से शो किया है। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो दीज 3 आर द इंटरफेज एंड द रेस्टिंग ऑफ द एम, यानी जो रेस्टिंग 4th फेज है, दैट इज कॉल्ड द एम फेज। एम मीन्स द माइटोसिस सेल डिवीजन हो रही है। यहाँ पर M से मैंने शो किया है कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगी, माइटोटिक फेज कहलाता है ये इसको हम कहते हैं डिवीजन फेज, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज सिंपली द सेल साइकिल। आपको राउंड में एक कंप्लीट साइकिल नजर आएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने याद रखना है। फर्स्ट वन इज द G1 फेज विच इज द ग्रोथ वन, सेकेंड वन इज द S फेज विच इज द सिंथेसिस फेज, थर्ड वन इज द G2 फेज विच इज द ग्रोथ 2 फेज, एंड फोर्थ वन इज द डिवीजन फेज। अब डिवीजन होगी तो डिवीजन डिपेंड करेगी कि कौन सी तरह का सेल्स है। If the cell is the somatic cells, so the mitosis division takes place. If the cell is the sex cells, so meiosis cell division takes place. Is that clear? So fourth one phase is the division phase. With hope कि आपको ये सेल साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेल साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now dear students, we have to discuss the G1 stage. G1 stage is basically the growth 1 stage. ग्रोथ का पहला स्टेज होता है। इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। इससे पहले GO फेज होता है, यानी G0 फेज, जिसमें जब न्यूली सेल फॉर्म्ड होता है तो वो उस टाइम रेस्ट करता है। देन फौरन से उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ग्रोथ 1 फेज क्या कहलाता है? G1 फेज कहलाता है, राइट। सो द इंटरफेज बिगिन विद दिस फेज। एंजाइम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA इज प्रोड्यूस। DNA फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं वो G1 फेज में बनते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल ग्रो रैपिडली बाय सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स विच शोज द बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तमाम तरह बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ इसी स्टेज में होती हैं क्योंकि ये सेल की ग्रोथ हो रही होती है, और जब सेल की ग्रोथ हो रही होती है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, तमाम तरह फंक्शंस होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिंथेसिस फेज होता है। दिस फेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज। ड्यूरेशन ऑफ द G1 इज़ अबाउट 25 to 50% ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेस जो कि G1, S और G2 को हम इंटरफेस कहते हैं। सो इंटरफेस में तकरीबन 25 to 50% ग्रोथ 1 यानी G1 फेज होता है। इज दैट क्लियर? Dear students, you can also see in the picture that
आफ्टर द माइटोसिस सेल डिवीजन साइटोकिनेसिस टेक प्लेस, और साइटोकिनेसिस के बाद दो सेल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं. सो हर एक डॉटर सेल्स ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करनी होती है, राइट. तो जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन सा फेज कहलाता है, रेस्ट पे चला जाता है, ठीक है. G0 भी कहते हैं इसको, G0 फेज भी कहते हैं. उसके बाद स्टार्ट होता है G1 फेज, और G1 फेज में होता है बेसिकली जितनी भी ग्रोथ होती है वो तमाम तर ग्रोथ कहाँ पर होती है, G1 फेज में. ये इंटरफेस की बिगनिंग होती है. इज दैट क्लियर? बिकॉज जितनी भी ग्रोथ होनी होती है सेल में आफ्टर साइटोकिनेसिस, आफ्टर फॉर्मिंग द डॉटर सेल्स, G1 फेज में ग्रोथ होती है. इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द S फेज. S फेज कौन सा कहलाता है, S स्टेज को कहते हैं हम. ये कहलाता है सिंथेसिस स्टेज. यहाँ पर DNA की सिंथेसिस होती है. इज दैट क्लियर? In this stage, synthesis of DNA occur and the number of the chromosomes become double. क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, डबल हो जाते हैं. इट्स मीन यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशंस होती हैं, डीएनए की कॉपीज बनती हैं. इज दैट क्लियर? द स्टार्ट ऑफ द एस फेज इज व्हेन द डीएनए रेप्लिकेशन कमेंस. व्हेन द फेज कंप्लीट ऑल द क्रोमोसोम्स हैव बीन रेप्लिकेटेड. हर एक क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है. ईच क्रोमोसोम हैज two sister chromatids. During this phase, the amount of the DNA in the cell is double. Duration of the S phase is 35 to 40% of the interphase. Interphase का about 35 to 40% synthesis phase में लगता है time duration. Is that clear? Now you have to see in the picture that after the growth one phase, S phase is started. दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द इंटरफेस. इंटरफेस का ये सेकेंड स्टेज होता है. यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है और क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं. इट्स मीन जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द थर्ड स्टेज विच इज द G2 stage. Right? Now we have to discuss G2 stage. It is again the gap phase or the growth phase which happens between the DNA synthesis and the mitosis. ठीक है. पहला फेज था G1 फेज. G1 फेज था between the S phase means synthesis phase and the G0 phase. G0 और सिंथेसिस फेज के इन बिटवीन कौन सा फेज आता है, G1 फेज आता है. G1 एंड G2 फेज के इन बिटवीन आता है सिंथेसिस फेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस G2 फेज. G2 फेज कहाँ पर आता है, ये आता है सिंथेसिस फेज और डिवीजन फेज, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन के इन बिटवीन का फेज होता है. इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग दिस फेज द सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो. The G2 is the checkpoint mechanisms control to ensure that the cell is ready to enter in the mitosis cell division phase or not. In this period, production of the protein and the microtubules occur that are required for the cell division. Cell division के लिए जो चीज़ें required हैं उसमें प्रोटीन और microtubules होते हैं. So इनकी सबसे पहले तो चेकिंग होती है कि ये completely prepared हो गए हैं या नहीं हुए. Number of the mitochondria also increases for energy production because जब सेल डिवीजन होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर का भी इंक्रीज होना होता है. द साइज ऑफ द सेल बिकम डबल एंड सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड. ठीक है, साइज सेल का डबल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब सेल ने डबल होना है, डिवाइड होना है. ठीक है. सो G2 फेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इंटरफेस में वो अबाउट कितना होता है, अबाउट 20% हो जाता है. इट इज़ द एंड स्टेज ऑफ द इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस का बिल्कुल ये एंडिंग होती है. उसके बाद हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन फेज. ठीक है. सो जो G2 फेज होता है, G2 फेज को आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि सिंथेसिस फेज के बाद G2 फेज स्टार्ट होता है और G2 फेज में तमाम तर चेकिंग होती है कि प्रोटीन कितना बना है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गए हैं या नहीं हुए, सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड हो गए हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर भी बन रहे हैं और आगे सेल डिवीजन होनी. ठीक है. सो उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, कौन सा फेज आता है, division phase. Now we have to discuss the division phase. Second phase of the cell cycle is the division phase. Division phase involves actual cell division and consists of the two stages. Cell division के दो stages होते हैं.
First one is called the karyokinesis and second one is called the cytokinesis. Now what is karyokinesis and the cytokinesis? The division of the nucleus is called the karyokinesis. Karyo word is arise from the karyon. Karyon means nucleus. So nucleus के division को क्या कहते हैं? Karyokinesis कहते हैं. And cytokinesis means the division of the cytoplasm is called cytokinesis. साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस कहलाती है. सो इट्स मीन डिवीजन जब होगी तो उसके दो सब स्टेजेस हैं. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा. जब न्यूक्लियस इन द सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी. उसमें जब न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. इज दैट क्लियर? सो पहले होगी न्यूक्लियस की डिवीजन और नंबर 2 पे कौन सी होगी? साइटोप्लाज्म की डिवीजन. राइट. सो ये जो फेज है क्या कहलाता है? ये डिवीजन फेज कहलाता है. डिवीजन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेल. So you must have to keep one thing in your mind that if the cell is the somatic cell, right? If the cell is the somatic cells, so the mitosis division take place. If the cell is the sex cell, so meiosis division take place, right? So now there are the different types of the cell division. There are the 3 types of the cell division. First one is the mitosis cell division. Second one is the meiosis cell division and third one is the amitosis cell division. Right. So mitosis is the type of the cell division in which one cell is divided into the 2 daughter cells and the number of chromosome remains same. That is called the mitosis cell division. And mitosis cell division takes place only in the somatic cells, vegetative cells. Somatic cells और vegetative cells में mitosis होती है. Whereas meiosis cell division, meiosis is the type of the cell division which take place in the sex cells, and this is the type of the cell division in which one cell is divided into the 4 daughter cells and the number of chromosome reduced to half, right? And meiosis cell division is only take place in the sex cells or the germ cells. ठीक है. meiosis cell division सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में होती है या फिर जर्म सेल्स में होती है जो कि हमारे जेनिटल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज कॉल्ड द amitosis cell division. Amitosis is the type of the cell division in which there is no any participation of the chromosomes takes place. Amitosis is the type of the cell division in which one cell is divided into the 2 or the multiple of the 2. This is you can say like the बर्डिंग और द फिजन प्रोसेस. ठीक है. जैसे फिजन प्रोसेस होता है ये बिल्कुल इस तरीके से होता है. रैंडमली सेल डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8 इस तरीके से सेल अपने आप को डिवाइड करते रहते. सो एमाइटोसिस एक ऐसी टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें सेल रैंडमली डिवाइड होते हैं, मल्टीपल में डिवाइड हो जाते हैं और ये बेसिकली स्पेशल टाइप के सेल्स में होती है जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती है, डिजीज सेल में होती है और अमीबा में होती है. ठीक है. और जो फिजन के प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया में होती है. सो एमाइटोसिस कहलाती है बिकॉज इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. सो एमाइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल because there are the 2 different types of the cells, animal cell and the plant cell. So इनमें सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है सो हम उसको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द ह्यूमन सेल और द एनिमल सेल. एनिमल सेल में 18 to 24 आवर्स होते हैं सेल साइकिल के लिए जिसमें 30 मिनट्स होते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड होता है वो होता है इंटरफेस का. ठीक है. यानी डिवीजन फेज के लिए सिर्फ 30 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द इंटरफेस. जबकि G1 फेज के लिए एटलीस्ट 9 आवर्स होते हैं और सिंथेसिस फेज के लिए अबाउट 10 आवर्स होते हैं, जबकि G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज के लिए अबाउट 4.5 आवर्स होते हैं. प्लांट सेल में सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए अबाउट 10 to 30 आवर्स लगते हैं. ठीक है. सो 10 to 30 आवर्स फॉर द सेल साइकिल
प्लांट्स के लिए अबाउट 10 to 30 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइप के प्लांट्स होते हैं. सो हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, टेंड्रल्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, तो उनके हिसाब से उनको टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए अबाउट 10 to 30 मिनट्स होते हैं. 10 to 30 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन. इट्स मीन जो रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड अबाउट 10 to 30 आवर्स हैं वो इंटरफेस के लिए रिक्वायर्ड है. राइट. सो इंटरफेस के हमें पता है 3 फेजेस होते हैं. तो G1 फेज के लिए 6 to 9 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं. एस फेज के लिए अबाउट 8 to 10 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज के लिए 2 to 4 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो दिस इज द बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल चार्ट. ये सेल साइकिल के लिए कितना वक्त रिक्वायर्ड है ये उसका चार्ट है, ये मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया है. सो विद होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. So dear student, this is all about the today's lecture. In today's lecture we discuss about the cell cycle. आज हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया और हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस को रेज किया था. आई होप सो कि आप लोगों ने उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड कर लिया होगा. हमने जो क्वेश्चन को स्टार्ट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर वी वर रेज सम क्वेश्चन एंड विद होप आपने उनके आंसर फाइंड कर लिए होंगे. और वो क्वेश्चन थे व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल थ्योरी, what do you mean by the cell cycle, how many phases of the cell cycle, what is the resting phase of the cell cycle, in which phase DNA replication take place, do you understand the cell division, how many types of the cell division. with hope so आपको इन तमाम तर क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा. Dear students, if you want to ask me any question, if you have any query, if you have any question, so you must have to ask me. You can write in the comment box, you can text me, you can email me. I will definitely give you the answer of your each and every query. If today's lecture is informative and beneficial for your academic growth, so please like, comment on the videos, subscribe my channel The World of Plant by Miss Sabeen Zahoor, and also press the bell icon for the notification of more informative videos. Please do share my channel The World of Plant by Miss Sabeen Zahoor. With hope you all are understand with today's lecture, so keep watching, keep learning. I shall be back with another conceptual lecture and topic very soon. Till then, watch, like, comment and share the videos. Thanks for watching to all the subscribers to joining my channel The World of Plant by Miss Sabeen Zahoor. Don't forget to like, subscribe, write in the comment box to telling what you like or what you want to like to make the video on that topic. Till then, take care. Allah Hafiz. Have a wonderful day.